Hi everyone, welcome to day one UGC NET YouTube course where I am going to teach you the syllabus of psychology. So today we are going to start the history of psychology where we will discuss Western perspective. So under Western perspective we have American perspective, we have British psychologists and we have Greek philosophers. So in today class we will discuss about Greek philosophers. So before starting the class, let me ask you some questions. Have you ever surprised? Why you overthink at night? Why some people stay calm in stress and whilst other panic? And why you feel happy at one moment and suddenly sad at the another moment? So if you know the answer, you are already doing the psychology. So let's understand what is psychology. So psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. Psyche means mind and logos means study of. So psychology is the scientific study of behavior and mental process. So in simple words we can say psychology studies how we think, feel, act and behave in different contexts or situations. So this is how the definition of psychology evolved from different perspectives. Today we will discuss about Greek philosophy, how they start with the concept of psychology. So this is very important topic कि आपका जो psychology है ये intersection of biology plus physics से बना है. This is also very important, so write down. आप सारे important points लिखते जाइए, ये आपकी UGC नेट में आपको help करेंगे. These are two important perspective. One is monism and second is dualism. तो ये दो perspective क्या discuss करते हैं? Monism के according mind and body they are single entity, they are one. और dualism perspective के according mind and body both are separate. So आज हम discuss करेंगे Greek philosophers जिसमें हम Socrates, Plato, Aristotle, René Descartes and other philosophers को discuss करेंगे. So Socrates was Plato was student of Socrates and Aristotle was student of Plato. So Socrates, Plato and Aristotle. तो इसको आपने लर्न करना है, इसको आपने स्टार मार्क करना है. ये बहुत बार एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा जाता है. So Greek philosophers laid the conceptual foundation of psychology long before it becomes a science. So they addressed various questions like nature of mind or psyche, knowledge, perception, memory, emotion, motivation, reason, mind and body relationship. So psychology was emerged from branch of philosophy. So again very important. इसको भी आप नोट डाउन कर लो कि साइकोलॉजी फिलॉसफी से इवॉल्व हुई है. साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, it is in your daily routine. So you don't need machines to study uh, people. You just observe and you can study the behavior of the people. So let's understand how Greek philosopher answer these questions by study the behavior of different individuals. So first, a prominent figure in the field of psychology, he was a great philosopher. He is Socrates. So Socrates was very important philosopher. Like he is known as father of modern philosophy. He is known as father of ethics. He didn't write any book and he believed in the dialogue method.
didn't write any book and believe in dialogue method. He was nativist, where he talk about knowledge is innate. तो इसमें ये बात करते हैं कि नॉलेज इनेट है, डायलॉग मेथड का यूज़ किया, फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर से। और इन्होंने डुअलिस्ट, इनका जो मानना था, ये कहते थे कि जो माइंड और बॉडी है, ये दोनों डिफरेंट है। तो डुअलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, और जिसमें ये बात करते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर डिस्टिंक्ट। इन्होंने थियोरी ऑफ डुअलिज्म दिया है, जिसमें इन्होंने थियोरी ऑफ डुअलिज्म में इन्होंने बात की है एक्सपीरियंसेस की, कि जो नॉलेज है वो हम एक्सपीरियंसेस से ड्राइव कर सकते हैं। नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। और अकॉर्डिंग टू हिम वर्च्यू इज नॉलेज। सोक्रेटिक के अकॉर्डिंग नॉलेज जो है हमारी, वो हम एक्सपीरियंसेस से गेन कर सकते हैं, वर्च्यू ही नॉलेज है। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मेथड दिया है, दैट इज सोक्रेटिक मेथड, जिसमें जो हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में यूज करते हैं। तो सोक्रेटी का जो सोक्रेटिक मेथड है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में यूज करके, वेयर वी आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कि डोंट like follow any thing without asking any questions. So don't behave like a dumb head. It is based on logical thinking. So he was rationalist also. Rationalist, where we talk about the logical reasoning. So these are the important concept that was given by Socrates. So Socrates का जो मेथड है, सोक्रेटिक मेथड, इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चनिंग टू अनकवर लेटेंट नॉलेज, जो अभी हमने डिस्कस किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में वो सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने टर्म यूज की है नो थाई सेल्फ। अकॉर्डिंग टू हिम, कि हमें सेल्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए, और जिसमें ये सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और मॉरल कॉग्निशन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट पर्सन है ग्रीक फिलोसफर में, वो है प्लेटो। प्लेटो वॉज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटी। सो ही वॉज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटी। ही वॉज ऑल्सो डुअलिस्ट। ही वॉज फॉलोइंग empiricism और empiricist पर्सपेक्टिव और अप्रोच, जिसमें हम बात करते हैं नेचर और नर्चर डिबेट की। एम्पिरिसिस्ट के अकॉर्डिंग, कि जो हमारी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंसेस से गेन होती है, और व्हेन द पर्सन इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, व्हेन ही गेन्स एक्सपीरियंसेस, तो वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ही ऑल्सो वॉज रैशनलिस्ट, जिसमें हम बात करते हैं कि वो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे है। सो प्लेटो का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ही गेव थ्री important concept in his theory. First was allegory of cave. Second was allegory of chariot. And third, he gave the theory of forms. तो ये सब नोट डाउन कर लो, ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो थियोरी ऑफ फॉर्म्स को थियोरी ऑफ आइडियाज भी हम कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि हाउ ही एक्सप्लेन डिफरेंट थियोरीज, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट एलिगरी ऑफ केव में हम बात करेंगे कि वेयर ही टॉक अबाउट रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, रियल वर्ल्ड एंड आइडियल वर्ल्ड।
So it is one of the important passage in Western philosophy that was written by the Plato, और it was written around 375 BCE, और इन्होंने ये रिपब्लिक बुक में लिखा था। तो इसमें ये क्या प्रेजेंट करते हैं, डायलॉग बिटवीन द प्लेटो मेंटोर सोक्रेटी एंड द प्लेटो ब्रदर, एंड वेयर ही टॉक अबाउट imprisonment, release, ascent and return. So let's understand what is allegory of cave. तो allegory of cave में you can understand with the help of this picture कि इसमें है स्टोरी क्या है. So Plato said that imagine a group of people who spent whole life in a dark room, that is a cave. So they are being chained up in a cave, like you can see there are lot of peoples who are sitting. So behind them there is a fire, and in front of them there is a wall. So there are some objects that are placed on the like path, and these objects are placed in front of fire, that casting shadow on the ball. The people take these shadows as realities. One person step outside the cave out of all these persons. तो इसमें एक person step outside the cave, or he see the world, like he see the sunlight. He go into the sunlight and new world confuse him. He slowly process the world. जब वो sunlight में जाता है, first he doesn't understand what is this. So slowly and gradually he understand. So when he came back, when he returned, and he share his whole story to the other prisoners, so other don't believe, and they may even become hostile. So the real world is outside. The sun gives light and life. It means the outside world is real. And so in this allegory of cave, he talk about that outside cave seems impossible, but it is not. Reality is the shadow of ideas. तो जो reality है, that is shadow of ideas, जिसमें वो darkness की बात करते हैं. अब इसमें he discuss the metaphor of perception and knowledge. Perception and knowledge. So through questioning, we understand the world. We understand the reality. So most people, they live in illusion according to Plato. So unless they question. So most people, they live in illusion. And education is not filling the mind, but turning the soul towards truth. Turning the soul towards truth. So this was the core idea this that he discussed in allegory of cave. तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें प्रिजनर्स को डिनोट किया है इग्नोरेंस से, शैडोज विद इल्यूजन, फायर विद पार्शियल ट्रूथ, आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉलेज, एंड सन इज गुड. इट मीन्स दैट इज द एक्चुअल रियलिटी, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. तो इस एलिगरी ऑफ केप में उन्होंने बात की है द सेंट्रल मैसेजेस, नॉलेज इज ग्रेजुअल and often resist, but turning the soul from illusion to truth is only possible when anyone step outside. जब कोई अनकंफर्टेबल कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में एंटर करेगा. तो इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की बात की है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है, हाउ रेजिस्टेंट टू चेंज अपीयर्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एनलाइटेंड की बात की है. तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा एलिगरी ऑफ केव. तो एलिगरी ऑफ केव को समराइज करते हैं कि इन्होंने इसमें एक केव की बात की है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की बात की है, डिफरेंट स्टेजेस को रिलेट किया है रियलिटी में, रियलिटी दैट इज़ रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड में. और हर पर्सन जो इल्यूजन में रह रहा है अनटिल और अनलेस अगर वो क्वेश्चन नहीं करता किसी भी आइडिया और नॉलेज को. तो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगरी ऑफ केव. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एलिगरी ऑफ चैरियट. तो एलिगरी ऑफ चैरियट भी प्लेटो का डायलॉग है,
और इसमें ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोल। तो ह्यूमन सोल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, वेयर ही टॉक अबाउट द ट्राईपार्टिएट स्टोरी ऑफ सोल। तो ट्राईपार्टिएट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्स अकॉर्डिंग टू हिम। तो अब थ्री सोल्स की में he is going to discuss about the one is chariot. Here chariot is pulled by two horses, you can see in the picture. There are two horses, and one is white in color and second horse is black in color. So let's understand what happened is in this allegory of chariot. तो इस स्टोरी में ये बताता है कि जो allegory of chariot है, he compare it to rational mind. Then chariot is pulled by two horses. One uh, one horse is mortal and second is immortal. तो ब्लैक हॉर्स को इमोर्टल से रिलेट किया है और वाइट हॉर्स को मॉर्टल से रिलेट किया है. सो वाइट हॉर्स इज वेरी एनर्जेटिक, स्ट्राइविंग फ्रॉम फॉर ग्लोरी, लिसन टू चैरियट और मोरालिटी को फॉलो करता है. सेकेंड जो ब्लैक हॉर्स है दैट इज इमॉर्टल, नॉट लिसनिंग टू द चैरियट मास्टर, नॉट लिसनिंग, नॉट फॉलो मोरालिटी, नो मोरालिटी और मटीरियलिस्ट वर्ल्ड और डिजायर्स के साथ रिलेट किया है. तो सो ही कंपेयर चैरियट टू द रैशनल माइंड. Chariot must balance between two competing forces. So life is a constant inner struggle. So it is very difficult to live a very righteous way of life. तो reason should rule over emotion and desire. तो ये जो rational mind है, ये reasoning के थ्रू ही कंट्रोल कर सकता है emotions and desires को. And it is only possible when moral character, like the soul aims to depend on balance and control between these two forces. When reason succeed, the soul ascend. तो अगर आप रीजनिंग के बेसिस पे इन फोर्स को compete करते हो, बैलेंस करते हो दीज टू competing फोर्सेस को, तो सोल असेंड्स. और अगर डिजायर डोमिनेट्स करती हैं तो सोल फेड्स. सोल फेड्स like when desires dominate. So this was the allegory of chariot. तो रीजनिंग की बात की है, डिजायर की बात की है, इमोशन की बात की है. तो ये जो आपका थ्री सोल है, लेट्स अंडरस्टैंड कि तीनों सोल्स क्या हैं. एक रैशनल सोल है जो रीजनिंग के बेसिस पे है, सेकंड इज स्पिरिटेड इमोशन सोल एंड थर्ड इज एपिटेटिव डिजायर. तो जो हम वाइट हॉर्स की बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस कंट्रोल, जिसमें मोरालिटी है उसकी बात करते हैं. एपिटेटिव सोल में डिजायर्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं. द ऑर्गन एसोसिएटेड विद रैशनल माइंड इज हेड. स्पिरिटेड इमोशंस के बेसिस पे और हार्ट की इसमें बात करते हैं. एपिटेटिव में डिजायर्स जिसमें एब्डोमेन को रिलेट किया है. तो दिस वाज द चैरियट allegory of chariot. So let's understand last theory, that is theory of forms. So theory of form is also known as theory of idea कहते हैं. सो प्लेटो ने इसमें क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटीज. First reality is based on senses, that is known as sensible world, that is physical world. And second type of reality, that is intelligible world, that is world of forms. So sensible world को explain करते हैं कि the world we see with our senses. Object here are imperfect. We can touch them, we can see, we can hear, but they are always changing. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर इम्परफेक्ट, दे आर टेम्पररी, बट वी परसीव इज ओनली अ कॉपी. सपोज एक
चेयर का ही एग्जांपल लो तो दैट इज अ कॉपी ऑफ वन ओरिजिनल चेयर। सो इसमें सेकंड जो स्टेप एक्सप्लेन किया है दैट इज एलिजिबल वर्ल्ड, world of form. So that is eternal world, that is based on reason, that is based not based on senses. It is perfect and eternal. It contains different forms like beauty, justice, equality, triangle, goodness. So many beautiful things exist, but they change, but the form of beauty itself never change. So this was the idea of Plato, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है टू लेवल ऑफ रियलिटीज को। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फिलोसफर दैट इज एरिस्टोटल। तो इनका देखते हैं कि इन्होंने कैसे साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है। के अकॉर्डिंग नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंसेस से गेन होती है। एरिस्टोटल वॉज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। तो ये आपको याद रखना है कि प्लेटो के स्टूडेंट थे वो, मोनिस्ट थे। उन्होंने थियोरी ऑफ डुअलिज्म को, जो सोक्रेटी ने दिया है, थियोरी ऑफ डुअलिज्म को रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ही वॉज मोनिस्ट। मोनिस्ट मीन्स माइंड एंड बॉडी आर वन। सो ही गेव वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग। तो इन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ये रीजनिंग की बात करते हैं। ही टॉक अबाउट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और इसमें इसको अंडरस्टैंड करेंगे वन ऑफ द एग्जांपल। लाइक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी राइट वन ऑफ द एग्जांपल, लाइक कि ऑल ह्यूमंस आर mortal. Socrates is a human. Therefore, Socrates is a mortal. तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें हम ना जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं। तो बच्चों ये आपको अंडरस्टैंड करना है, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक। तो जनरल क्या हो गया, हर एक ह्यूमन मॉर्टल है। फिर हमने स्पेसिफिक की बात की, सोक्रेटिस अ ह्यूमन, देन कंक्लूड किया कि सोक्रेटिस अ मॉर्टल। तो दिस इज अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसके अपोजिट होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ये इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट विल हेल्प यू इन नेक्स्ट चैप्टर। तो इंडक्टिव रीजनिंग में किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्पेसिफिक में सपोज यू कैन राइट कि मैंगो इज स्वीट, फिर आप बात करोगे कि बनाना भी स्वीट होता है। देन यू कैन राइट कि ऑल फ्रूट्स आर, लाइक मैंगो इज स्वीट, बनाना इज स्वीट, ग्रेप्स आर स्वीट, सो यू कैन राइट कि ऑल फ्रूट्स आर स्वीट। सो दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो प्लेशनलिस्ट थे, लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है इनका जो भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो रैशनलिज्म में भरोसा करते थे। ही एम्पिरिसिज्म को भी इम्फसाइज किया है इन्होंने। तो एम्पिरिसिज्म मतलब कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके इंटरेक्शन से गेन होते हैं और नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। So mind is potentially knowing shaped by experiences. So knowledge developed through perception. That was the important or core idea of Aristotle. सो एरिस्टोटल की एक बुक है जिसमें डी एनिमा बुक के नाम से है, और इस बुक में उन्होंने सोल के बारे में डिस्कस किया था। और ये माना जाता है कि ग्रीक फिलोसफर में फर्स्ट टेक्स्ट बुक है साइकोलॉजी की, जिसमें उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग की बात की है। ठीक है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग देयर आर 4 कॉजेस, मटेरियल कॉज है, फॉर्मल कॉज है, एफिशिएंट कॉज है, एंड फाइनल कॉज, टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द व्हाई बिहाइंड बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट। सो इनका टाइप ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें इन्होंने वेजिटेटिव सोल, सेंसिटिव सोल, रैशनल सोल की बात की है। तो हेरोफिलस भी एक रियॉन्ड पर्सनालिटी है, जिसमें हम ग्रीक फिलोसफी की बात करते हैं। तो ग्रीक फिजिशियन थे ये,
और इन्होंने सबसे पहले मैप किया था नर्वस सिस्टम को। एक इनका कंट्रीब्यूशन भी है साइकोलॉजी में। तो प्री मॉडर्न एरा में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की बात की है। दे वर फिलोसफर बट indirectly they talk about the psychology. So Avicenna was a person, he was a Persian philosopher, so who made a significant contribution to early psychology. स्टडी ऑफ सोल की जब बात करते थे साइकोलॉजी कि में, तो इनका कॉन्सेप्ट जो सोल का है उसका रिलेशन हम बॉडी के साथ कनेक्ट करते थे। तो एवरोइस जो फिलोसफर हैं, इन्होंने भी बात की है, एरिस्टोटल पे कमेंट किया है, डिबेट किया है नेचर ऑफ इंटेलेक्ट पे। और फ्रांसिस बेकन की हम बात करते हैं जिसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही इज़ मेजरली फेमस फॉर इंडक्टिव रीजनिंग। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, तो फ्रांसिस जो बेकन है, दैट ही वाज बोर्न इन 1561। और डेट्स भी पूछी जाती है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। 1626 तक इनका होल लाइफ स्पैन था। इंग्लिश फिलोसफर थे और ही इज नोन एज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। सो ही बिलीव इन एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो इंडक्टिव मेथड जो है जिसमें हम बात करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, तो इनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए हमें कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। तो साइंटिफिक मेथड्स शुड बी अप्लाइड। सो एनीथिंग दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटेड शुड बी जर्नलाइज्ड। लाइक कि जब भी कोई आपको जर्नलाइज करना है तो एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं कर सकते। तो इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं जिसमें बात की है कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, देन हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड में ये डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही आप ये सब कर सकते हो, एंड देन यू कैन वेरीफाई एंड जर्नलाइज। आप डायरेक्ट जर्नलाइज नहीं कर सकते कि कोई भी फिनोमिना को, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट। तो ये फ्रांसिस वेकन का कॉन्सेप्ट था। सो रिने डिकार्टे ऑल्सो हैज की कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी। सो इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1595 से लेके 1650। अब इसमें माइंड बॉडी डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। ही वॉज डुअलिस्ट। तो ये आपको नोट डाउन करना है। अगर कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो ही वॉज रैशनलिस्ट एंड रीजनिंग एंड लॉजिक आर प्राइमरी मीन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉजिक है, हमारा रीजनिंग है, इन्होंने लॉजिक एंड रीजनिंग पे एम्फसाइज किया है। अकॉर्डिंग टू हिम माइंड कंट्रोल्स बॉडी। तो माइंड जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी को। माइंड कंट्रोल्स बॉडी बाय पीनियल ग्लैंड, जिसको हम कनोरियम भी उसने कहा था, दैट इज ऑल्सो नोन एज कनोरियम। सो ही फर्स्ट टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपको पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले किसने बात की थी। सो ही ऑल्सो टॉक अबाउट एनिमल स्पिरिट्स। CSF की बात की है, सेरिब्रो स्पाइनो फ्लूइड। सो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रिने डिकार्टे का। So he is known as the father of modern philosophy also in some book. So here is the method of doubt की बात की है, cogito ergo sum. That was important saying of Rene Descartes. I think therefore I am. So it means the act of thinking itself proves one's existence. So even if all the perceptions are doubted, thinking can't be doubted. सो ये माइंड बॉडी डुअलिज्म, इंटरैक्शनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका टर्म। इंटरैक्शनिज्म में इन्होंने माइंड और बॉडी का इंटरैक्शन बताया है थ्रू पीनियल ग्लैंड। जॉन लॉक। जॉन लॉक इज वेरी फेमस like philosopher.
तो उनको टैबुला रासा की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने टैबुला रासा टर्म दी है, वेरी फेमस टर्म। इट मीन्स ब्लैंक स्लेट। तो इन्होंने कहा है कि जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट की तरह है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जब उसमें ऐड होते हैं तो इट इज़ जो ब्लैंक स्लेट पे लिखा जाता है, मतलब थ्रू एक्सपीरियंसेस। सो माइंड एट वर्थ इज लाइक a blank slate, and all the knowledge come from experiences. So empiricist theory of knowledge, empiricist theory of knowledge का concept दिया है। Then he is known as the father of classical liberalism. So two source of knowledge की बात की है इन्होंने। इन्होंने sensation की बात की है, that are external appearances, and reflection की बात की है, that are internal experiences. So इन्होंने यही कंट्रीब्यूशन है जॉन लॉक का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंचुरी एनलाइटमेंट। तो 8th सेंचुरी एनलाइटमेंट में जॉर्ज वर्कले की बात करते हैं, जिनका 1685 से 1753 तक का होल लाइफ स्पेन था, जिसमें वो बात करते हैं रियलिटी एग्जिस्ट ओनली एज आइडिया इन द माइंड। तो रियलिटी एग्जिस्ट ओनली as the idea in the mind, that is through perception. So अब इसमें क्या है जॉर्ज वर्कले का, कि वो एम्पिरिसिस्ट थे। ही लाइक ऑल्सो डेवलप सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, और इन्होंने एक्सपीरियंसेस पे एम्फसाइज किया है। तो नेक्स्ट है डेविड हुम। सो ही कंक्लूड दैट माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ सेंसेशन। तो एसोसिएशन की बात की है कि जो हमारा सेंसेशन है, हाउ इट लिंक्ड with your like perception and how experiences are like gained. तो नेक्स्ट है इमाल कांत। इमाल कांत का 1724 से लेके 1804 तक का लाइफ स्पेन है। ये कभी कभी पूछा जाता है डेट्स, तो इनको डेट्स को आपने अच्छे से याद करना है। तो इनका जर्मन फिलोसफर थे ये। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने। ही बिलीव्स इन होल आइडिया रादर देन इट्स पार्ट्स। तो emphasize gestalt psychology, emphasize on perception, where he talk about mental processes. तो perception की बात करते हैं, mental process की बात करते हैं। तो all experiences are structured by space and time. Two types of knowledge. पहली नॉलेज को बोला जाता है a priori knowledge, and second type of knowledge is a posteriori knowledge. Knowledge through logic and reason is known as a priori knowledge. तो जो आपकी रीजन लॉजिक के बेसिस पे है उसको अ प्रायोरी नॉलेज कहा जाता है, और पोस्टीरियर नॉलेज वैसी है जो एक्सपीरियंसेस से गेन होती है। इसमें ऑब्जर्वेशन सेंसेशन की बात करते हैं वो। और आ प्रायोरी नॉलेज में ही टॉक्स अबाउट लॉजिक, ही टॉक्स अबाउट फार्मूलाज, ही टॉक्स अबाउट रूल्स, जिसमें मैथमेटिशियन करते हैं। तो ही एक्सप्लेन्ड अबाउट दीज टू टाइप ऑफ नॉलेज। तो ये आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंच जोसेफ गैल। सो फ्रेनोलॉजी की बात की है। ही ट्राई टू लिंक स्पेसिफिक मेंटल फैकल्टीज टू द एरिया ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो हमारे मेंटल फंक्शंस हैं हमारे एरियाज ऑफ ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट हैं, तो इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसमें हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, फ्रेंच ब्रिटेनो। सो he was German philosopher and psychologist. So he was considered his magnum opus, and he is credited with his like introduce one of the important concept जिसको intentionality बोलते हैं। So इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया है कि emphasize on mind process, माइंड और मेंटल प्रोसेसेस पे emphasize किया है rather than content.
So he gave three important classification, we can say, there are three mental objects. तो इन्होंने सबसे पहले बात की है प्रेजेंटेशन की, सेकंड इन्होंने बात की है जजमेंट की, एंड थर्ड इन्होंने डिस्कस किया है फिनोमिना ऑफ लव एंड हेट, जिसमें ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज प्रेजेंटेशन। तो ये ब्रिटेनो का कॉन्सेप्ट है जिसमें थ्री मेंटल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन मीन्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सेकंड ये बात करते हैं क्वालिटी की, डिटरमाइन क्वालिटी। थर्ड बात करते हैं ये फीलिंग्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स। लव हेट की। So according to him, every mental act incorporates something outside itself. So he used the phenomenological methods. Phenomenological methods use किया है इन्होंने अपनी स्टडी में। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंच ब्रिटेनो का। सो ये प्रेजेंटेशन, जजमेंट्स, फिनोमिना ऑफ लव एंड हेट, सो ट्राईपार्टिएट क्लासिफिकेशन दिया है मेंटल फिनोमिना का। सो सिंपल अवेयरनेस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जजमेंट की बात की है, फिनोमिना ऑफ लव एंड हेट की बात की। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज विलियम डिल्थी। सो डिल्थी का जर्मन फिलोसफी से कनेक्शन है। ही वॉज जर्मन फिलोसफर, सो हु स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ह्यूमनिस्टिक एंड इंटरप्रेटिव साइकोलॉजी. So he may make the clear distinction between natural sciences and human science. So he didn't like the way psychology was copying the physics and biology. His big question was, can human mental life really be studied like the human objects? तो इन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन किया है नेचुरल साइंसेस का और ह्यूमन साइंस का। According to him, psychology belongs to human science. So he wrote a book in 1894, Idea for Descriptive and Analytical Psychology. तो इन्होंने बुक लिखी है आइडिया। He wrote one book, Idea for Descriptive and Analytical Psychology. So where he proposed descriptive psychology. सो इट वॉज बिलीव कि जो डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो डिल्थी ने दिया है। अब इनके अकॉर्डिंग ही टॉक्ड अबाउट नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं नेक्सिस। तो जो डिल्थी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्होंने नेटवर्क को नेक्सिस के साथ रिलेट किया है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेक्सिस। फर्स्ट इज लाइव्ड नेक्सिस एंड सेकंड इज साइकिक नेक्सिस। अब जो लिव्ड नेक्सिस हैं, दीज आर द इंटरकनेक्टेड फ्लो ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस। जितने भी हमारे लाइवली एक्सपीरियंसेस हैं, इनका इंटरकनेक्शन है। और साइकिक नेक्सिस मतलब फिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस, तो हम इनको अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे साइकिक नेक्सिस है, इट कंटेन्स ओनली फिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस वेयर इंटरनल साइकोलॉजी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये इंटरनल साइकोलॉजी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। हाउ मोटिव्स, थॉट्स, इमोशन फंक्शन टुगेदर। तो हमारे जो मोटिव्स हैं, जो थॉट्स हैं एंड इवन इमोशंस, हाउ दे फंक्शन टुगेदर। सो ये जो हमारे लाइफ नेक्सिस हैं, दे आर द पास्ट एक्सपीरियंसेस, दे आर प्रेजेंट लाइक सिचुएशन एंड दे कैन बी फ्यूचर आउटकम्स। तो जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है, एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर आउटकम्स चाहिए। Where he talk about history, language and culture. So he was influenced by phenomenology
तो फिनोमिनोलॉजी को उन्होंने डिस्कस किया है अपने यूज़ किया है बड़े सारे स्टडी में। नरेटिव साइकोलॉजी, वेयर ही टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, और इन्होंने क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ किए हैं फॉर स्टडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। और लास्ट है हर्म्योनेटिक्स जो मेथड है, वो विलियम डिल्थी का बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है